Hello students, welcome to my channel. In this solution series, I am discussing NCERT exercises. So, in this video, I am going to discuss exercise 1.3, question number 8 to 14. This is my live class schedule. Please do join and please share with others. Coming to the first question, it's saying that the f of x is equal to x square plus 4, so that f is invertible with inverse f inverse, and f is a mapping from r plus to 4 in infinity. Okay, so first of all हमें invertible check करना है, तो we'll check 1 to 1 and on to. So if a function is 1 to 1 and on to, then we can say that the f is invertible. तो see, f of x1 is equal to f of x2. यहाँ से क्या आएगा, x1 square plus 4 is equal to x2 square plus 4. तो 4 will get cancelled. यहाँ से x1 square is equal to x2 square. तो x1 is equal to plus or minus x2. Therefore x1 equal to x2 or x1 equal to minus x2. Not possible because function mapping हो रही है r plus से. तो x belongs to r plus. This means all positive real numbers. So this is not possible. Therefore x1 is equal to x2. This implies that f is 1 to 1. तब चेक करते हैं on to. तो y is equal to x square plus 4. यहाँ से क्या आएगा, x is equal to plus or minus square root of y minus 4. Again कि x belongs to r plus. So since x belongs to r plus, therefore x is equal to square root of y minus 4. Therefore f is on to. Okay, hence f is invertible. Hence f is invertible. Therefore x is equal to f inverse of y. तो अब देखो if x की वैल्यू क्या है, root of y minus 4. So this is equal to square root of y minus 4. Hence f inverse y is equal to square root of y minus 4. I hope ये भी समझ में आ गया है तुम लोगों को. Next we'll see the question number 9. So here also same questions. We need to we need to prove that f is invertible and then हमें find करनी है f inverse of y. तो again invertible के लिए हम क्या करेंगे, invertible implies if and only if 1 to 1 and on to. तो देखो f of x1 is equal to f of x2. 9x1 square plus 6x1 minus 5 is equal to 9x2 square minus plus 6x2 minus 5. 5 कैंसिल हो गया है, तो 9 इंटू x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम x1 माइनस x2 कॉमन ले सकते हैं इंटू 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो x1 इक्वल टू x2 तो आ ही रहा है यहाँ से, और दूसरा वैल्यू क्या आ रहा है, देखो 3x1 इज इक्वल टू माइनस 3x2 प्लस माइनस 2 प्लस नहीं माइनस 2. तो अब देखो कि x बिलोंग्स टू r प्लस, यहाँ पे भी x r प्लस पे बिलोंग हो रही है. इसका मतलब क्या, x1 कैन नॉट बी नेगेटिव, नॉट नेगेटिव. So this is not possible. Then f is 1 to 1. अब चेक करते हैं on to. On to के लिए क्या है कि f of x is equal to y है, y belongs to. तो यहाँ पे क्या है ना, f of x मतलब y is in terms of x है, हमें x in terms of y लिखनी है. 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5. यहाँ से देखो 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस y इज इक्वल टू 0. तो हम क्या लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 प्लस y इज इक्वल टू 0.
तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 18। तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, -6 प्लस और माइनस 36, तो 6 बाहर आ जाएगा, 36 का स्क्वायर तो 1 प्लस 5 प्लस वाई बाई 18। तो 6 से डिवाइड कर दो, -1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस वाई बाई 3। ओके, तो अब देखो अगेन x इज नॉट नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस वाई बाई 3। ओके, तो देखो अब क्या है कि ये ऑन टू हो गया है फंक्शन, इसके प्री इमेज मिल रहा है, हर एक y के लिए हमारे पास x की वैल्यू मिल जाएगा, तो इन्वर्टेबल। अब क्या है देखो, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, तो दिस मीन्स -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस वाई बाई 3, बस यही था एफ इनवर्स y। ठीक है, समझ में आ गया है। नेक्स्ट मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है यहाँ पे, एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम x टू y बी एन इन्वर्टेबल फंक्शन, इन्वर्टेबल बोल दिया है, सो दैट एफ हैज यूनिक इन्वर्स। तो ठीक है, चलो एफ का यूनिक इन्वर्स फाइंड करनी है हमें, तो 2 इन्वर्स ले लेते हैं एंड उसके साथ हम दिखाएंगे कि दोनों इन्वर्स इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो गिवन क्या है, लेट एफ इज ए मैप फ्रॉम x टू y बी एन इन्वर्टेबल फंक्शन, invertible function. If G is an inverse, if G is an inverse of f, then for all y belongs to y, f composed G of y is equal to iy। ये होती है कि condition, if G is the inverse means G is equal to f inverse of y, तो इफ कॉम्पोज जी इज इक्वल टू आई वाई। तो अब देखो दोनों ही इन्वर्स मान लेते हैं एंड दोनों को इक्वल प्रूफ करने वाले हैं हम। लेट G1 एंड G2 बी 2 इन्वर्स ऑफ F। ओके, तो क्या होगा देखो, देन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, इफ कॉम्पोज G1 ऑफ y इक्वल टू आई वाई एंड इफ कॉम्पोज G2 ऑफ y इज इक्वल टू आई वाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है देखो, इफ कॉम्पोस्ट g ऑफ y1 इज इक्वल टू इफ कॉम्पोस्ट g ऑफ y2। ठीक है, तो यहाँ से देखो f इज इन्वर्टेबल बोला है, तो f अगर इन्वर्टेबल है इसका मतलब क्या है ना कि 1 to 1 एंड ऑन टू दोनों है, तो f ऑफ g2 ऑफ y, एक मिनट मैंने उल्टा लिख दी यहाँ पे, g2 ऑफ y g1 ऑफ y, y1 y2 नहीं, वैल्यू एक ही है, g1 ऑफ y g2 ऑफ y। तो सिंस f इज 1 to 1, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, g1 ऑफ y इज इक्वल टू g2 ऑफ y। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया है, g1 इज इक्वल टू g2, हेंस f हैज ए यूनिक इनवर्स। So I hope this is also clear for you all. Now moving to the question number 11. Question number 11, let's see what is telling here कि f is a mapping from 1 to 3 to ABC and f1 equal to a, f2 equal to b, f3 equal to c given है, find f inverse and show that f inverse of f is equal to y। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है 1 2 3 a b c, तो f ऑफ 1 क्या है, दिस, f ऑफ 2, f ऑफ 3, तो 3 का इमेज क्या हो रही है, c। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कमा a, 2 कमा b, 3 कमा c। f इनवर्स इज इक्वल टू a कमा 1, b कमा 2, c कमा 3। ठीक है, तो देखो f इनवर्स ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, f इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू 2, f इनवर्स ऑफ c इज इक्वल टू
3। तो अब देखो एफ इनवर्स की होल इनवर्स, सो दिस इज इक्वल टू 1 कमा ए, क्योंकि इसका इन्वर्स ले रहे हैं हम, 1 कमा ए, 2 कमा बी, 3 कमा सी। तो ऑब्वियसली ये एफ हो गया है, देयरफॉर एफ इनवर्स की होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ। कुछ नहीं है, बस डोमेन एंड रेंज कोडोमेन इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है। तो आई होप दिस ऑल्सो क्लियर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे क्या दिखा नहीं, देखो एफ इन्वर्टेबल फंक्शंस गिवन है, तो शो दैट द एफ इनवर्स is f, so that the inverse of f inverse is f, okay, means f inverse की whole inverse equal to f, ये प्रूफ करनी है। चलो, तो इन्वर्टेबल फंक्शंस जो गिवन है ना, तो f is a map from x to y be an invertible function, ये गिवन है। तो इसका मतलब क्या पता है, therefore हम क्या लिख सकते हैं, f is 1 to 1 and on to, क्योंकि इन्वर्टेबल है। लेट एक इन्वर्स फंक्शंस पकड़ लेते हैं हम, g y टू x बी एन इन्वर्स ऑफ f, ठीक है। तो g कॉम्पोज f इज इक्वल टू आई एक्स हो जाएगा, f कॉम्पोज g इज इक्वल टू आई वाई हो जाएगा, ठीक है। सिंस g इज इनवर्स ऑफ f, इट इज ऑल्सो इन्वर्टेबल। इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टेबल फंक्शन इज इन्वर्टेबल फंक्शन होती है, इट इज ऑल्सो एन इन्वर्टेबल फंक्शन। लेट g inverse be the inverse of g, so g composed g inverse is equal to iy and g inverse composed g is equal to ix। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो g मीन्स क्या है, f इनवर्स है ना, तो देखो f कॉम्पोस्ट f इनवर्स इज इक्वल टू आई वाई एंड f इनवर्स कॉम्पोस्ट f इज इक्वल टू आई एक्स। तो हेंस f इनवर्स इज ए मैपिंग फ्रॉम y टू x is invertible and f is the inverse of f inverse, therefore f inverse whole inverse is equal to f। तो आई होप ये भी प्रूफ हो गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था सेम अप्रोच से हमने प्रूफ किया है ये भी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये MCQ है, बोल क्या रहा है कि f कॉम्पोस्ट f फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो f ऑफ x क्या गिवन है, देखो 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर होल पावर 1/3। अब देखो f कॉम्पोस्ट f ऑफ x क्या हो जाएगा, f ऑफ x, इसका मतलब तो f ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3 है, तो क्या होगा 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3, ये होल पावर 1/3। क्लियर। f ऑफ x है ना, ओके हाँ, यहाँ पे क्यूब था, एक मिनट, ये क्या था बेसिकली, देखो x के जाएगा ना, 3 माइनस ऑफ f ऑफ x होगा, 3 माइनस f ऑफ x क्यूब, तो f ऑफ x क्या है, 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3, इसकी पावर 3 एंड होल पावर 1/3, तो 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3, क्योंकि ये 3 एंड ये 3 कैंसिल हो गया है, फिर 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब होल पावर 1/3, तो यहाँ से क्या आ रहा है, देखो 3 कैंसिल, ओके, तो एक्स क्यूब की पावर होल पावर 1/3, तो इसका मतलब x, तो क्या आ गया है, f कॉम्पोस्ट f ऑफ x इज इक्वल टू x, देखो ऑप्शन सी। तो नाउ विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। देखो ये क्या बोल रहा है बेसिकली, f is a mapping from r minus 4/3 and f of x is the inverse of f is the map g is from range of f to r minus this given by, okay,
So here see f of x is equal to 4x upon 3x plus 4. Okay, now calculating the inverse. तो take f of x is equal to y, तो क्या होगा y is equal to 4x by 3x plus 4. ठीक है, तो देखो यहाँ से हमें y को x को y के फॉर्म में लिखनी है, तो 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x. तो क्या आएगा 3xy माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 4y. तो x इंटू 3y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4y. x इज इक्वल टू माइनस 4y बाई 3y माइनस 4. तो माइनस कॉमन लेते हैं नीचे से, 4y बाई 4 माइनस 3y. तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y आ गया है. तो एफ इनवर्स y इज इक्वल टू 4y बाई 4 माइनस 3y. इसको हम लिख सकते हैं कि g ऑफ y इज इक्वल टू 4y बाई 4 माइनस 3y. देखो ऑप्शन का आंसर जो हो गया है ऑप्शन बी. ओके, सो आई होप you all understood these questions. If anyone is having any doubt, please write in the comment sections. This is my Teachmeet profile. अगर किसी को paid classes चाहिए for entire year 11, 12 JEE, तो मुझे फॉलो कर सकते हो इसमें. ये मेरी फ्री लाइव क्लासेस की शेड्यूल है. जो लोग जिसको अभी तक नहीं पता है, प्लीज़ डू ज्वाइन माई लाइव क्लासेस. And thank you for watching my video. Please do share with others. And those who are new to this channel, don't forget to subscribe my channel.